Hello, my dear students. Assalamu alaikum warahmatullah. How are you all? Hope you're doing fine. So, in this video, we are going to start where I'm going to show you about some basic features of keyboard. Keyboard is an input device, man input device, and through which we are entering the data to the computer system. So it has a lot of keys, around 104 keys available in it. So it has different types of keys. Suppose numeric keys, and toggle keys are there, function keys are there, and some more keys. Suppose we are pressing two keys or three keys at a time, and they have some specialized functions. For example, if we press alt and F4 key, so it has its own function to go back in the program. And similarly, if we will press Ctrl and S, it will save the document. And if we will press the Control key and P, letter key, alphabet key, Control plus P, at the same time, so it will print our document at the current time. So we have a big key that's known as a large key, which is available on the keyboard, which you can see in the bottom of your keyboard. That's known as space bar key, through which we are allowed to make a space in our document. So some different types of keys are available: page up, page down, and home. While going to the upper page, we are making use of this page up, and while going towards the bottom of our page, we are making the use of page down. And key and home key, it has its own functions, and I have discussed with you all the functions. If you are going to make clear about this type of keys, you can watch my previous video, and in that video I have discussed all the types of keys. So in this video, I'm going to show you about the placing of our fingers on the keyboard, how we are going to start, how we are going to handle this keyboard, how we are going to type our documents. So there are a lot of fingers in our hand, and we have around 10 fingers in the left hand, right hand, and how to type with our fingers, and what is the appropriate procedure while while going to start, or while going to handle to the key onto the keyboard. So it's a appropriate procedure for all the fingers on the on the type of on this keyboard. So you can look at the keyboard. On the top left of your keyboard, the top left of your keyboard is escape key, and you can see the function keys on the top row of the keyboard from F1 up to F10. These are some special, and these are some functional keys, and they are known as function keys. And F10 and F11 and F12 is you can see on F11 on F1 and F12 on F2. So there are numlock keys, pause or break keys, or delete keys in the uppermost column at the right most end of your keyboard. So coming to the next coming to the next row, there are number keys starting from 1 and which ends up to 0, and similarly you can see some more keys, hyphen or plus or equal to, yeah, or backspace keys on the second row of your keyboard. So you can see on the third row of your keyboard, it starts from tab and ends up to backslash, or while there are so many alphabet keys like Q, W, E, R, T, and it ends up to P. And in the next row we can see caps lock key, and which ends to the right end of your keyboard, that's enter key.
This is a special type of key. This is the key while you are going to make a paragraph in your column, and while you are going to enter in any application or program, you have to make use of this enter key. And coming to the next row, starts from the shift key. Shift key has its own feature, like you have to change the pattern of your alphabet key, like you have to make use of small key or large or capital key. You can modify it by using shift key. And it starts from this row starts from shift in the left and ends up to shift in the right. So coming to the next row, starts from control. It's a control key on the next on the left bottom of your keyboard, left corner of your keyboard. That's known as control key. And function key, Fn, and Windows key and Alt key and spacebar. You can look at the spacebar key. Quantum is written on the spacebar key, is the biggest key in the keyboard, while allowing a space in the document or in any desired software. So we are making use of this key by our thumb. And Alt key, control key. You can look at the keyboard. Alt is on the two sides of your keyboard. One is at the left side and one is at the right side. And the control key is on the two sides, left and right. We're making very use of these keys, so they are placing on the different areas of your keyboard. And page up, and these are some special type of keys: page up, page down, and home. So this is all about your keyboard, and today we are going to deal with the second row. And in the last video we have seen the home row. Home row is from starts from this row is the home row, caps lock row. And there are so many alphabet keys like A and which ends up to L. So these are the home rows, and how we are going to train our fingers onto the home row. So we'll be discussing about the typing of the home row. Let me start it. And so allocation of keys to fingers. So I have shown you all the fingers starting from little left finger and up to little right finger. And in these fingers is ring finger, index finger, middle finger or forefinger of the left hand, and thumb of the left hand. So these fingers, these are these are in the left hand. And if we are going to discuss about the capsule, discuss about the home row key, we are making use of the left hand, and we are making the same use of our right hand. A, S, D, F and G for the right hand, for the left hand, and J, K, L semicolon for the right hand of our hand fingers. So, and while practicing in home row, please look at your screen. So this is the little finger of your left hand. Little finger of your left hand is for A, and in the ring finger of your left hand it's for S, and the middle finger of your left hand it's for D, and index finger or forefinger of your left hand for F, and thumb. And G is for left hand. G is for index finger of your left hand. F and G, these are the keys which is to be typed with the same finger. Like
H and J H and J keys are to be pressed with our right index finger, and K is to be pressed with your middle finger of your right hand, and L is to be pressed with your ring finger, and semicolon is to be pressed with your little finger of your right hand. So this is the positioning of your fingers on the home row. So if I'll tell you about the home row, what home row starts from which alphabet keys and ends up to which key. So you can easily tell me about you can easily tell this is starting from A and then ends up to semicolon, and this is the home row. So some alphabet keys are there. So while pressing these alphabet keys, we are making our fingers, we are going to train our fingers at the appropriate places. This is the appropriate procedure while pressing all the keys of home row. So after that, we have discussed about the how to get how to make use of it and how to practice a lot. And we have some instructions about the pressing of these keys. You should never look at the keyboard, and आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए while entering the key. और आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट मुझे प्रेस करना है, या कौन सी लेटर, कौन सा की अब मुझे प्रेस करना है, उसी का मतलब इसकी टू बी डन क्वाइट एक्यूरेटली. आपको एक्यूरेट, आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, और आपको until you would become a master of the keyboard. So इसके बाद allocation of keys to fingers on the third row, upper row. And upper row is the third row, which is the third row is the upper row, and home row is the second row, and beneath the home row is the first row. So I'll be going to tell you, this home row is from A to L. This is the home row, and up to the upper of this row is the third row, and to the below of this home row is the first row. So first row is from ZXCV up to greater than front slash, and this is the first row. And above this is our second row, which is your home row. So you can say that home row is the second row, and above the second row is the third row, which starts from QW and ends up to P. So we are going to tell you about the allocation of keys to fingers on the third row. Third row is to the above of your home row. सो जो थर्ड रो है हमारे पास, उसका हमने अपने उंगलियों का कैसा यूज़ करना है, कि उसको कैसे प्रेस करने होंगे, हम वो कीज़ कैसे हमें प्रेस करने होंगे, और हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर फिंगर्स ऑन द third row, which is the most upper row, and which is the above of our home row. So it starts, the learning begins with the rates from A to Q. A to Q by left hand finger, and from semicolon to P by right hand little finger, and A to Q. एंड देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा होम रो था, हम प्रेस कर रहे थे लिटिल फिंगर से एक की हम प्रेस कर रहे थे लिटिल फिंगर से. इसी तरह आपको का जो थर्ड रो है, जो क्यू से स्टार्ट होता है, आपको उसी की पे अपनी जो ये लिटिल फिंगर है, लिटिल लेफ्ट फिंगर से आपने क्यू की प्रेस करनी है. तो इसी तरह जो आपके पास लिटिल फिंगर है, राइट लिटिल फिंगर, तो आपने पी प्रेस करना है. पैरेंथेसिस, सॉरी, पहले हम ये देखेंगे लिटिल लेफ्ट फिंगर से. तो लर्निंग बिगिन्स विद राइट. जो आपका क्यू है और जो आपका पी है,
P से आपका लेफ़्ट फिंगर प्रेस होना चाहिए और Q से आपका लेफ़्ट फिंगर से आपने Q को प्रेस करना चाहिए, लिटिल लेफ़्ट फिंगर से आपको Q प्रेस करना चाहिए, और राइट जो लेफ़्ट फिंगर है उससे आपका P प्रेस होना चाहिए। तो इसमें से आप देख लीजिएगा कि ये जो रिंग फिंगर है, लेफ़्ट रिंग फिंगर जो है उससे आपको W प्रेस करना है, और मिडिल फिंगर जो है लेफ़्ट हैंड में तो उससे आपका E प्रेस ई की जो है की वहाँ पे वो प्रेस होना है। तो इसी तरह जो इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर है आपके लेफ़्ट हैंड का, तो उससे आपको प्रेस करना है टी। तो इसी तरह जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से आपने दो काम करने हैं। लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से आर और टी का काम करना है, इन दो कीज़ को प्रेस करना है। और राइट जो इंडेक्स फिंगर है, राइट जो फोर फिंगर है, इससे आपने दो काम करने हैं। कौन कौन से कीज़ प्रेस करने हैं? वाई और यू। इसी तरह जो मिडिल फिंगर है आपके जो राइट हैंड में, तो इससे आपका आई का काम करना है, आई को प्रेस करना है। इसी तरह जो रिंग फिंगर है आपके राइट हैंड में, तो इससे ओह प्रेस करना है। वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो। तो इसी तरह जो लेफ़्ट फिंगर है, राइट लेफ़्ट फिंगर है, तो इससे प्रेस करना है आपका कौन सा की? पी। तो ये है प्रोसीजर आपके हैंड्स का, आपके फिंगर्स का, while pressing the third row of the कीबोर्ड। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर आपको टाइपिंग करनी है अपर रो, आपने आपने उसी टाइम पे आपने जो फिंगर्स हैं वो होम रो पे आपने उसी टाइम पे लाना है, उसी मोमेंट पे आपको लाने हैं अपने फिंगर्स थर्ड रो पे जिस वक्त वो ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, अगर आपने मतलब ऐसे ट्रेन करना है अपने फिंगर्स को बाय डिफ़ॉल्ट आपने होम रो पे रखने हैं। तो होम रो के बाद जब कभी भी आपको टाइप करना है डॉक्यूमेंट, तो उसके फ़ौरन बाद आपको थर्ड रो में जाना है। आप जाइए थर्ड रो में, फिर इजीली आप बैक टू योर होम रो। तो आपने मतलब बिला ज़रूरत आपको जब भी किसी भी वक्त आपको ज़रूरत है होम रो, तो आप जाइएगा उस पर, थर्ड रो पे जाइएगा। लेकिन आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपने हैंड्स को ऐसे प्लेस करना है, अपने फिंगर्स को ऐसे रखना है, मतलब वो होम रोज पे ही बिठाने हैं। आपने इस तरह से अपने जो फिंगर्स हैं पोजीशन करना है। सो दैट इज़ द अप्रोप्रिएट पोजीशन while making use of your fingers, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपने होम रोज पे रखने हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जो QWERT जो मैं अभी बता रहा था, जो R और T, ये आपने प्रेस करना है अपने इंडेक्स फिंगर, जो आपके लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर हैं, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर ऑफ योर, और हम इसको फोर फिंगर भी कहते हैं, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर ऑफ योर हैंड। सो अगैन लिफ्ट द फिंगर्स, आपको उठाना है अपने जो राइट हैंड एंड स्ट्राइक अपर रो कीज ऑफ वन आफ्टर अनदर एंड टाइप। तो क्या है कि जो होम रो पे आपको बिठाना है अपने जो फिंगर्स, इसके बाद जब कभी भी ज़रूरत होंगे थर्ड रो के, या वाइल आपको प्रेस करना है फर्स्ट रो के कीज़, तो उसी टाइम पे आपने अपने जो फिंगर्स हैं ऊपर नीचे करने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने होम रोज पे ही रखने हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो हमारे जो फिंगर्स हैं, तो ये इट्स मैनली प्लेस्ड ऑन योर होम रो, दैट्स योर सेकेंड रो। तो यू शुड एंश्योर दैट वन फिंगर शुड मूव एट ए टाइम, यही। और जो यू और वाई की जो थर्ड रो पे कीज़ हैं, यू एंड वाई, and that are to be typed by your same finger, that are to be typed by your right index finger, U और Y। और हमने R और T के बारे में अभी देखा कि R और T को हमने टाइप करना है with the left index finger, और U और Y को हमने टाइप करना है with the right index finger। तो इसके बाद है allocation of keys to fingers on the first row। फर्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट रो, दैट्स फर्स्ट रो keys are ZX, CVB, NM, comma, full stop and
front slash is known as slash in our computer terminology. And it's also known as is commonly known as oblique sign. क्या है कि हम कैसे वर्ड्स को और सेंटेंस को टाइप करेंगे, ये जो ये प्रैक्टिस हैं ये हैं इट्स फॉर थर्ड रो QWERTPOIUY QWERTPOIUY. So in the earlier two rows, all the fingers above the hands are used to operate the keys. तो हमने देखा था कि जो दो रोज हैं, थर्ड रो और सेकंड रो और होम रो जो है, हमने 8 उंगलियों का भरपूर इस्तेमाल किया है to operate the keys. But while typewriting in the first row, little finger of left hand is not used. जो फर्स्ट रो है हमारे लिए, फर्स्ट रो है नीचे वाला रो जो हमारे पास, तो इसमें से हमें लिटिल फिंगर ऑफ जो लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर है उसका यूज़ नहीं करना है. उसका यूज़ तो हमने यही नहीं ज़रूरी नहीं करना है, हमने यूज़ नहीं करना है. तो it means that we are supposed to not use our left little finger here. So that's no keys assigned to our little left finger in the first row. फर्स्ट रो में आपको ये काम नहीं करना है, इससे कुछ भी काम नहीं है, इसका कुछ भी काम नहीं है. किसका? जो लिटिल लेफ्ट फिंगर है आपके पास. तो so from the home row, turn downwards the ring finger of left hand and strike his Z. तो होम रो से हमने देखा जो हमारे होम रोज की कीज थे. शो ये हमारा होम रो. तो ए जो लेटर है, ए जो की है वहाँ पे हमने ये की प्रेस किए थे किससे? लेफ्ट फिंगर से. तो इसी अब जो फर्स्ट रो है इसके नीचे हम देखते आ रहे हैं कि ZXCVBNM. तो इसमें से आप कोई भी की यहाँ पे नहीं है जो आपने प्रेस करने हैं अपने लिटिल लेफ्ट फिंगर से. इसका मतलब है लिटिल लेफ्ट फिंगर, तो यहाँ पे कोई काम नहीं है लिटिल लेफ्ट फिंगर का. तो जो रिंग फिंगर है इसके बाद टू द राइट ऑफ योर लिटिल लेफ्ट फिंगर जो रिंग फिंगर है, तो इसका काम है Z को प्रेस करना. यही Z को प्रेस करना है. कहाँ पे? इन द फर्स्ट रो ऑफ योर कीबोर्ड. तो Z को आपने प्रेस किया. तो सिमिलरली जो टाइप कीज यू टाइप X and C, जो Z तो आपने प्रेस किया रिंग फिंगर से, उसके बाद जो X है, X की है वो दैट्स टू बी टाइप्ड बाय योर मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर. तो ये याद रखना कि जो X है टू बी टाइप्ड विद योर लेफ्ट मिडिल फिंगर, and C is to be typed with your left index finger, and C and V are those keys which is to be typed with your left index finger. तो यहाँ पे एक और काम, यहाँ पे हम और एक बात है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर की. तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का काम है यहाँ पे 2 कीज़ को प्रेस करना है, और राइट इंडेक्स फिंगर का भी 2 कीज़ को प्रेस करना है. कौन कौन से? जो राइट इंडेक्स फिंगर्स हैं वो हैं B और N, और जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हैं वो हैं C और V के लिए. तो जो मिडिल फिंगर हैं, जो सबसे बड़ी फिंगर हैं, सबसे बड़ी उंगली है हमारे राइट हैंड में, उसके लिए M है. क्या है? M. तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो राइट रिंग फिंगर है उसके लिए कोमा, एंड लिटिल लेफ्ट फिंगर के लिए फुल स्टॉप. यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे इतना ही है हमारे लिए. तो आप देखते हैं कि आपने जो अभी देखा अल्फ़ाबेट्स V and P आर टू बी टाइप्ड with your index fingers, left index finger and right index finger. V को लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से टाइप की और B को टाइप किया अपने राइट
index finger से. So let you type, let you practice the bottom row of the keyboard. ये थोड़ा सा इसने टाइप किया है CHALK और CAN can child chalk. और अब हमें देखना है कि allocation of keys to fingers on the fourth row, number row. So हमारा जो नंबर रो है वो है दैट्स और फोर्थ रो. हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं. पहले आता है फर्स्ट रो, उसके बाद आता है सेकंड रो. सेकंड रो इज योर होम रो एंड थर्ड रो. उसके बाद वो भी हमने डिस्कस कर रखा है. अब हमने डिस्कस करना है फोर्थ रो, द अपर मोस्ट रो ऑफ आवर स्क्रीन ऑफ आवर कीबोर्ड. तो इन दिस रो मोस्टली यहाँ पे नंबर कीज़ हैं. क्या है? नंबर कीज़. सो हमें कैसे टाइप करना है ये जो नंबर्स हैं. हम टाइप करेंगे 1 2 3 विद लिटिल रिंग एंड मिडल फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड. 1 2 3 को हम प्रेस करेंगे विद आवर लिटिल रिंग एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड से. तो इसी तरह हम 4 और 5 को हम प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से. 4 और 5 को हम प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से. 4 और 5 को हम प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर. सिमिलरली 0 9 8 के लिए हमारा लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड है. 0 9 0 के लिए हमारा लिटिल फिंगर, लिटिल राइट फिंगर. 9 के लिए हमारा रिंग फिंगर एंड 8 के लिए हमारे मिडल फिंगर हैं. तो इसी तरह जो 7 और 6 हैं वो भी इंडेक्स फिंगर से हैं. 7 और 6 इंडेक्स फिंगर से हैं. 5 भी इंडेक्स फिंगर हैं और 5 और 6 इंडेक्स फिंगर से हैं और 7 भी इंडेक्स फिंगर से इसे प्रेस करना है. तो ये था न्यूमेरिक कीपैड ऑन द कीबोर्ड. तो अब यहाँ पे ये इसने दिखाया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0. तो 1 is to be pressed with your little left finger, and इसी तरह 2 ring finger, 3 middle finger, 4 index finger and 5 index finger. 4 and 5 is to be typed with your left index finger, and 6 and 7 is to be typed with your right index finger, and 8 is to be typed with your bigger one, larger middle finger, and 9 is to be typed with your ring finger, and 0 is to be typed with your little right finger, right hand, little right finger respectively. So these are the number of keys. These were the number keys. It's just to be typed with your fingers. So you have read all the pattern, how it is to be typed with our fingers, how we are going to make use of our fingers while typing. So अगर हम देखेंगे यहाँ पे नंबर रो है राइट हैंड, ये कैलकुलेटर है. तो मैनली ये इस कीबोर्ड पे यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है. तो दिस कीपैड और दिस न्यूमेरिक कीपैड is being used in the banking keyboard, is used in the banks. mainly जो बैंक्स में हमारा कीबोर्ड होता है वहाँ पे ये जो न्यूमेरिक कीबोर्ड्स हैं, कीपैड्स हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया हुआ है. तो आप देख लीजिए कि ये जो है ये कैलकुलेटर टाइप कीबोर्ड है. तो इसका भी इसी तरह हमने पोजीशन करना है. तो इसका भी भरपूर हमें इस्तेमाल करना है. वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, mainly इसमें जो effect and this is efficient and effective use of numeric keyboard. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जैसे हमें बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर ही टाइप करने हैं, वहाँ पे न्यूमेरिक डाटा ही कोई इंटर करना है. तो इसके लिए हमने जो बहुत ही ईमानदारी से इसी का यूज़ करना है. तो हमने वी डोंट यूज़ एट दैट टाइम द अल्फ़ाबेटिक कीज़, वी डोंट यूज़ द फंक्शन कीज़, एंड वी डोंट यूज़ सम स्पेशलाइज्ड कीज़. सो हियर वी आर यूजिंग ओनली न्यूमेरिक keys, number keys. So while entering data we are using the number keys. So जो ये numeric keypad है
तो इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं आप देख लीजिएगा कि इसमें 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं इसमें। ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे लिए 4 कॉलम्स हैं। और अगर हम रोज़ की बात करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट 0 डॉट और एंटर, ये है रोज़, क्या है रोज़, ये है। तो कितने रोज़ हैं इसमें, 5 रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं। ये जो रो है 4 5 6 एंड प्लस साइन, 4 5 6 एंड प्लस साइन। लुक एट द न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड हियर। तो न्यूमेरिक कीपैड में आपने जो सेंटर वाले कीज आपने देखे हैं वो हैं 4 की, 5 की, 6 की एंड एडिशन की। तो दिस इज़ योर होम रो। वहाँ पे कौन सा होम रो था हमारा, तो लेट मी शो यू द मैन कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा होम रो था वो था ए से लेके कैप्स लॉक से, यहाँ से ये जो कीज़ थे ASDFGHJKL सेमी कॉलन। तो ये वाले जो कीज़ हैं ये हमारे लिए होम कीज़ हैं, क्योंकि ये सेकंड रो है, सेकंड रो ऑफ द कीबोर्ड, ये है होम रो। तो इसी तरह जो कैलकुलेटर न्यूमेरिक कीपैड है उस पे कौन सा वाला हमारा होम रो है, होम रो इस पे 4 5 6 और एडिशन की है, क्या है ये होम रो। तो इसी तरह हम देखें जो इनिशियली बिलो इट्स जो इससे नीचे वो है फर्स्ट रो, इसी तरह सेकंड रो, थर्ड रो है, इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ रो है। कितने रोज हैं, 5 रोज। तो जो essentially is practiced by touch typist the allocation of keys on the row। तो ये जो allocation है कौन मतलब किस तरह से हमने की को प्रेस करना है ये हम अभी पढ़ेंगे। ऑन ए न्यूमेरिक कीपैड द नंबर 5 इज द गाइड की। जो 5 की है हमारे लिए वो है गाइड की, गाइड की। और इट हैज़ ए स्मॉल रेज टैंजिबल मार्क। तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें थोड़ा सा मार्क लगा हुआ है वहाँ पे। इट सेपरेट्स विद अनदर की, तो इट्स ए गाइड की। So you can say here the number 5 key is the guide key in the numeric keypad, which serves as a guide for the touch typist in the placement of fingers on other keys। तो इससे ये पता चलता है कि टाइपिस्ट को कि कैसे how we have to place our fingers on other keys। तो it's known as guide key, which key 5 key। तो allocation of rest of the keys on numeric keypad, 0 is to be pressed by the right hand thumb। तो जो 0 है is to be typed by the right thumb of your hand। तो mainly जो न्यूमेरिक कीपैड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड है, तो हम टाइप करते हैं इसमें से सारे कीज़ जो हैं इसमें से हमारा लेफ़्ट हैंड सेपरेट रहता है, इसमें हमारा लेफ़्ट हैंड यूज़ नहीं होता है। तो हम वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ ओनली ऑफ आवर राइट हैंड। कैसे, जो राइट हैंड के लिए हमारा जो थंब है वो है 0 के लिए। तो इसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है, राइट रिंग फिंगर जो है, तो रिंग फिंगर के लिए 1 2 है। और मिडिल फिंगर के लिए है ये वाला। आप देख लीजिए कि ये जो रोज में लिखे हैं यहाँ पे, तो ये है मिडिल फिंगर के लिए, ये है इंडेक्स फिंगर के लिए, और ये है रिंग फिंगर्स के लिए। तो इसमें थोड़ा सा आपने देखना है, आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो इसके बाद आपने समझना है। तो अगर आपके पास कीबोर्ड है घर पर तो आप यूज़ भी कर सकते हैं इसी तरह जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कैसे कौन सा की कैसे इस्तेमाल करना है और किस फिंगर से कौन सा की प्रेस करना है। तो इसमें कुछ कीबोर्डिंग टिप्स दिए गए हैं। तो लेट मी शो यू क्या क्या कीबोर्डिंग टिप्स हैं। पहला क्या है,
तो टच से मतलब मामूली से आपको टच करना है कीबोर्ड से, तो जेंटल टच करना है। और यू डोंट पुट अंडर अनड्यू प्रेशर, तो आपको ज़्यादा प्रेशर दबाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो मामूली से आपको प्रेस हल्के से हल्के हाथों से आपने जो अपना कीबोर्ड है प्रेस करना है, टाइप करना है, तो कीज़ हर एक कीज़ को। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस वक्त भी आप कोई काम करोगे, आपका जो हाथ हैं, दोनों हाथ, तो आपके जो फिंगर्स हैं वो होम रो में होना चाहिए। तो होम रो के बाद ही आपने उन रोज़ का इस्तेमाल करना है, या फर्स्ट रोज़ थर्ड रो का इस्तेमाल करना है, फोर्थ रो का इस्तेमाल करना है, जब कभी भी वो ज़रूरत पड़ेंगे। तो ज़रूरत ना होने से मतलब ज़रूरत से पहले कि आप वो काम करोगे, इससे पहले कि आपको रेस्ट करना है अपने फिंगर्स होम रोज पे, तो वाइल टाइपिंग, तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ेंगे इसी तरह आपने मतलब उसी टाइम पे आपने वो अपने जो फिंगर्स हैं ऊपर नीचे करने हैं। और इसके बाद क्या है, allow your fingers to fall naturally on the key so that each rests on top of the next key along the same horizontal row। कि जो आपकी कीज़ हैं इसको जल्दी जल्दी काम करना है। मतलब ये नहीं कि एक हाथ से दूसरे उंगली से दूसरी की प्रेस कर रहे हैं, मतलब कि जो अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, तो इससे ये प्रेस नहीं करनी है, मतलब जेंटली आपको प्रेस करना है। तो ये जो अपने फिंगर्स इसको ऐसा ट्रेन करना है, ऐसे मास्टर फिंगर्स बनाने हैं कि जिस वक्त भी आपने कुछ भी प्रेस करना है, आपने वही एक फिंगर ऊपर लेनी है, तो वही उसी एक फिंगर को नीचे करना है, नीचे लाना है। तो आपने सारे फिंगर्स को ऊपर नहीं लाने हैं, सारे फिंगर्स को नीचे नहीं लाने हैं, उसी फिंगर्स को नीचे ऊपर लाना है। जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी ऊपर या नीचे जाने की, तो वही फिंगर एट द सेम मोमेंट आपको वही फिंगर को ऊपर नीचे करना है। तो टाइपिंग वाइल टाइपिंग आपने रिलीज़ करने हैं कि इमिजिएटली एज सुन एज यू प्रेस इट, इमिजिएटली आप प्रेस करोगे। फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्रेस क्यू, तो आप प्रेस क्यू प्रेस करेंगे लेफ्ट फिंगर से, तो इसके बाद इसको हाँ मतलब रिलीज़ करो। तो होल्डिंग द की फॉर लॉन्ग टाइम रिपीटेडली दैट टाइप द सेम करेंगे। अगर आप एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रेस करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे किसी भी फिंगर से कोई भी की, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो बहुत बार उसका यूज़ हो जाएगा। और आपने क्यों एक बार प्रेस करना है, तो आप होल्ड करोगे बहुत मोर देन ए सेकेंड, तो वो की प्रेस होगी मल्टीपल टाइम्स। तो इससे जो आपकी जो कीबोर्ड है, इससे भी आपकी जो प्रैक्टिस है, टाइपिंग प्रैक्टिस है, that becomes that will not become an efficient। और वाइल टाइपिंग और आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। तो पहले पहले इन द बिगनिंग तो आपको कीबोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जब आप मास्टर बनोगे कीबोर्ड टाइपिंग में, तो आप उसके बाद कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आपको बस कंप्यूटर मॉनिटर्स में देखना है या टच स्क्रीन पे ऊपर देखना है। तो और आपको रिदम में प्रेस करने हैं अपने जो कीज़, और प्रेस द कीज़ ओनली विद द फिंगर्स अलॉटेड फॉर देम। यही कि आपने पूरा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने कोई भी प्रेस नहीं करने हैं विदाउट मतलब थंब से आपको बैक स्पेस स्पेस बार कीज़ प्रेस करने, और अपने थंब का इस्तेमाल कैप्स लॉक के लिए नहीं करना है। इसी तरह कोई भी की अगर प्रेस करने हैं, उसके एलोकेशन मैंने जो आपने ऊपर बताए अभी या पिछले वीडियोस में, आपको उन्हीं फिंगर्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो प्रेस वाइल प्रेसिंग की से स्लोली प्रोनाउंस द करेक्ट ऑन द की। और ये बात ध्यान में रखना कि वाइल प्रेसिंग आपको थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंस करना है QW, और वाइल प्रेसिंग और थोड़ा सा प्रोनाउंस करना है स्लोली। एंड डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए वाइल टाइपिंग। तो बिगिनिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा, अराउंड 1 मंथ लगेगा ही
आपको ये इसमें मास्टर बनने में या आपको फोकस करने में, आपको याद रखने में कीबोर्ड की कीज़ को याद रखने में, तो आपको स्ट्रेस आएगा, मतलब आपको फील लगेगा, आपको थोड़ा सा ऑड फील लगेगा वहाँ पे। तो आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं करना है, अपनी जो मेंटल है तो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है कि मुझे क्यों नहीं आता, मुझे ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता। धीरे धीरे जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो प्रैक्टिस, आपने जो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। और आपको हल्का सा, मतलब जो टाइपिंग है आपकी वो बढ़ती ही जाएगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी, तो आपको फिर ठीक लगेगा। और इन द बिगिनिंग आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो आप फिर उसके बाद काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि इसमें आपको कूल रहना है, कॉम रहना है। तो सिक्योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को आपको प्रॉपरली वो अपना जो प्रोटोकॉल है, आपको बैठने में या टेबल सामने रखने में आपने जो पढ़े हैं वो रूल्स, वो भी इम्प्लीमेंट करने हैं सीरियसली। तो और आपको पेशेंस रखना है। इफ़ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज, आप इनिशियल स्टेज में मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने उतना उतना प्रैक्टिस भी नहीं है। जब कभी भी हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बिगिनिंग में तो हम कुछ न कुछ करते हैं, मतलब हमें ये नहीं पता होता है क्लच का या ब्रेक का या गियर चेंज करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो उस टाइम से स्टेयरिंग ट्राई भी नहीं होती है, तो धीरे धीरे यहाँ जब हम देखते हैं, क्लच को छोड़ते हैं, एक्सीलेटर का भरपूर यूज़ करते हैं और इसमें बैलेंस आता है, फिर हम गियर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले पहले हम फर्स्ट और सेकंड गियर्स में ही चलते हैं। तो उसके बाद जब धीरे धीरे हम मतलब कॉन्फिडेंस आ जाती है, फिर हम थर्ड गियर का इस्तेमाल भी करते हैं, फोर्थ वन और फिफ्थ वन का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम हाईवेज़ पे पहले पहले हम क्या करते हैं, ग्राउंड में चलाते हैं, फिर हम जाते हैं रफ़ रोड्स में, या फिर हम चला लिंक रोड्स में। उसके बाद जब हम हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती हैं, तो फिर हम आते हैं नेशनल हाईवेज़ पे, फिर हमें एक किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है। इसी तरह ये भी है, टाइपिंग जो है, टाइपिंग प्रैक्टिस जो है ये भी इसी तरह है। पहले पहले आपको लगेगा कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मैं ये, मतलब हार नहीं माननी आप में, मतलब आप कर सकते हैं कुछ भी, आपको बस कूल और काम रहना है, पेशेंस रखनी है। तो इसके बाद आप में बैलेंस आएगी, आप यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। और इसके बाद जब आप मास्टर बनोगे, तो इसमें फिर आपको स्पीड भी अच्छी रखनी है या एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, एंड विच आर बोथ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये है इम्पॉर्टेंट वाइल क्रैकिंग एनी एग्ज़ाम। तो कोई भी एग्ज़ाम को आपने क्रैक करना है, उसमें यही देखते हैं कि ये जो स्पीड है बच्चे की या कैंडिडेट की, तो ये वो कैसी है, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती हैं। एंड टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, undertake a repeated practice of typewriting। यही कि if you want to become the master of your computer keyboard, you have to practice, you have to make repeatedly, you have to practice your keyboard। मतलब भरपूर अपने अपने काम करना है कीबोर्ड के ऊपर। तो वर्ड्स पे या सेंटेंसेस पे याद रखना है पूरा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। पहले आप एक काम करोगे, आप पहले आप रिमेंबर करोगे सारे के सारे, सारे के सारे। एक रफ शीट लाओ, एक पेपर ऑफ शीट लाओ, तो उस पर ये कंप्यूटर जो कीबोर्ड है, मैन कीज़, ये जो अल्फ़ाबेट कीज़, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो आप लिख लीजिए। फिर आप देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा है और राइट हैंड के लिए कौन सा है। लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स हैं उनके लिए कौन कौन से की में प्रेस करना है, और राइट हैंड के फिंगर्स के लिए कौन कौन से प्रेस करना है कीज़। तो उसका भी आप काम कर लीजिएगा उसी प्लान शीट ऑफ पेपर पे। तो जितना आपने मतलब जितना आपको हो जाएगा फिर प्रैक्टिस, तो उसके बाद अगर आपको मुमकिन हो जाएगा, आप एक कंप्यूटर कीबोर्ड लाइएगा। तो उससे क्या होगा, तो उससे आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस। तो इसके बाद उसको जो आपके पास कीबोर्ड होगा, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन
स्मार्टफोन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली वाइल सीइंग टू द स्क्रीन ऑफ योर स्मार्टफोन। तो आपने ये जो एर्गोनॉमिक्स वाइल टाइपिंग, तो जो आपके एर्गोनॉमिक्स ये चेक करने हैं कि आप सिटिंग पोस्चर कैसे हैं आपका, या वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो आपका जो डेस्क जो सामने रखा हुआ है उस पे जो आपके सिस्टम है या कीबोर्ड है या माउस है वो अप्रोप्रिएटली पोजीशन में एडजस्ट हैं, या कंप्यूटर टेबल माउस या कीबोर्ड आपके सामने जो हैं वो कैसे प्लेस किए हुए हैं, या डेस्क और चेयर वो कैसा है, वो ठीक तरीके से लगा हुआ है, एडजस्ट करके हैं वो, या कंप्यूटर टेबल है यही कि पोजीशन में है, या आपने जो पूरे जो टूल्स हैं वो फिट हैं, वो इन एन अरेंज्ड फॉर्म है ऑन योर डेस्क। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डेस्क का मतलब अप्रोप्रिएटली पोजीशन, या डेस्क के ऊपर जो कुछ भी सिस्टम पार्ट्स हैं वो ठीक ढंग से, या आपका जो बैठने का तरीका है वो भी अकॉर्डिंग टू पोस्चर जो मैंने बताया है वो रूल्स, उसी तरह से आपको बैठना है मॉनिटर के सामने। और जो पाम का यूज़ या एल्बो को आपने टच नहीं करना है अपने बॉडी के साथ, गैप रखनी है, या थाइज और सॉरी लेग्स और बेंच में आपको गैप रखना है, डेस्क में गैप रखना है, या वो सब कुछ आप ने मद्देनज़र रखना है कि कैसे कैसे पूरे जो रूल्स हैं या पूरे जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें वो आपको मद्देनज़र रखना है to become the master of typing. So it's enough for today. So tomorrow we'll be discussing about the introduction of to rapid typing tutor. और बच्चे आप एक काम करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जहाँ जहाँ पे भी आपको मुश्किलात आएगी तो वहाँ पे कमेंट भी करना, साथ साथ लाइक भी करना। थैंक यू ऑल।